Assalamu alaikum. Today we are going to learn about the inguinal canal. As I have mentioned in front of the inguinal canal that it is a VIP question and it came in 2021 prof as well, जो अभी recent second year का prof हुआ है उसमें inguinal canal का एक SCQ आया था. So note it down that inguinal canal is very important, not only in a way that it comes in the exam but also practically. Being a doctor you should know about the inguinal canal, because after inguinal canal we are going to learn about the clinicals of this chapter. Then you are going to know that why the anterior abdominal wall is so much important for a surgeon to know about. If we are going to treat hernias, then we should know about the inguinal canal. Inguinal canal is an oblique intermuscular passage, मीन्स एक टेढ़ी सी पैसेज है जो कि मसल्स के बीच में से गुजरती है, राइट. तो मसल्स कौन से हैं एंटी एब्डोमिनल वॉल में? एक्सटर्नल ओब्लिक है, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस. तो इट इज़ अ पैसेज, इट इज़ अ कैनाल, इट इज़ अ पैसेज विच इज़ ओब्लिक and passing between the muscles, and it is located just above the medial half of the inguinal ligament. If you remember my first video when I told you that what is the difference between the medial half of the inguinal ligament and mid inguinal point, they both are different thing. I'm repeating here again कि the distance between from the anterior superior iliac spine, हिप बोन पे होता है anterior superior iliac spine, जो मिड पॉइंट होगा between anterior superior iliac spine and pubic tubercle, that is going to be the medial half of the or mid point of the inguinal ligament. Other comes the mid inguinal point and distance from the anterior superior iliac spine and to the pubic symphysis. Pubic symphysis कैसे बनता है कि जो दो pubic bones दोनों साइड से आती हैं, जहाँ वो बीच में मीट करती हैं, वो pubic symphysis होता है. तो जो उनका मिड पॉइंट होगा anterior superior iliac spine और pubic symphysis का, that is mid inguinal point. It often comes in viva that what is the difference between mid point of the inguinal ligament and mid inguinal point, right? अब हम लोकेशन की बात कर रहे हैं तो जो ये है ये मीडियल हाफ ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट के ऊपर पड़ा हुआ है. तो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल की तरफ एक लाइन ड्रॉ की. हमने अगर पैल्पेट भी करना है ना तो हम ऐसे ही करते हैं. एग्जामिनर जब हमने हर्निया को करना था तब भी हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं. अब उसका जो मिड पॉइंट होता है उस मिड पॉइंट को हम लेते हैं. उस मिड पॉइंट जस्ट अबव द मिड पॉइंट जो है ये इंगुइनल कैनाल ओब्लिकली जा रही होती है, राइट. ये जो मैंने इस तरह ये बनाया जिसके ऊपर से ऐसे गुजर के जा रही है, दैट इज़ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. तो ये इंगुइनल कैनाल ऐसे जस्ट मीडियल हाफ ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट, यहाँ इंगुइनल लिगामेंट पड़ा हुआ है. ये एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल की तरफ आते आते यहाँ पे लिगामेंट पड़ा हुआ है. उसका जो मीडियल हाफ ऊपर होगा वहाँ पे ऐसे ये इंगुइनल कैनाल गुजरती है. अब आपको अगली बात क्या है कि लोकेशन के बाद एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करती है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डीप इंगुइनल रिंग टू द सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग. टू नो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन that it extends from deep inguinal ring to superficial inguinal ring, actually you have to know that what is deep inguinal ring and what is superficial inguinal ring and where they are located, so you can know that where is inguinal canal is located and from where to where it extends, right. Again in my first lecture I told you that there are 7 layers of the abdomen which often comes in viva or MCQs, which are skin. अगर हम anterior से posterior जाते हैं, from anterior to posterior we have skin, then we have superficial fascia, then external oblique muscle, then internal oblique muscle, then transversus abdominis. And yesterday I told you that transversus abdominis is covered by a fascia that is known as fascia transversalis. तो होता है क्या बेटा, जो सबसे posterior layer है, वेरी पोस्टीरियर लेयर, दैट इज फेशिया ट्रांसवर्सालिस, वहाँ पे एक ओपनिंग होती है. उस फेशिया के अंदर एक ओवल शेप ओपनिंग हो जाती है. उस ओपनिंग को बोलते हैं डीप इंगुइनल रिंग. और सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग जो है एक्सटर्नल ओब्लिक के अंदर एक ओपनिंग होती है. तो फेशिया ट्रांसवर्सालिस में ओपनिंग होगी वो डीप इंगुइनल रिंग, और जो एक्सटर्नल ओब्लिक के अंदर ओपनिंग होगी दैट इज गोइंग टू बी सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग. अगर हम उस डीप इंगुइनल रिंग से सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग की तरफ एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो ये देखें, ये लेटरल से मीडियल एक तो आ रही है और दूसरा ये ओब्लिक बन रही है और ये कैनाल बन गई. दिस कैनाल इज नोन एज बेटा इंगुइनल कैनाल. So, opening in fascia transversalis is deep inguinal, external oblique की opening is superficial inguinal. Oblique इस तरह हमने line draw की तो ये passage बन गया and it is known as inguinal canal. अब आ जाती है बात inguinal canal की boundaries की.
तो इंग्वाइनल कैनाल की बाउंड्रीज़ के लिए ये हमारे पास 3 डायमेंशनल इमेज है जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेगा। लेकिन बेटा टू नो अबाउट द इंग्वाइनल कैनाल एज आई कैन नॉट टेक यू टू द डाइसेक्शन हॉल जहाँ पे हम बॉडी पे वी कैन डू डाइसेक्शन एंड कैन एक्चुअली टेल यू कि वेयर इज इंग्वाइनल कैनाल। सो अबाउट द बाउंड्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू रटाफाई दोज थिंग्स कि इसकी बाउंड्रीज जो है उनको आपको रटा लगाना पड़ता है। क्योंकि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकती हूँ कैसे, लेकिन इधर मैं इतना बता सकती हूँ कि ये देखो ये डीप इंग्वाइनल रिंग है, सबसे पोस्टीरियरली आगे को ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है और वो ऐसे कैनाल बन रही है। ठीक है, अब ये उसकी कैनाल बन गई, उसकी इंटीरियर वॉल है, फिर पोस्टीरियर वॉल है, एक इसका फ्लोर बन रहा है ये, और इसके ऊपर एक रूफ भी होती है। ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल का मकसद क्या है पहले तो वो बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी बाउंड्रीज बहुत अच्छे से याद करा लेती हूँ। बेटा इंग्वाइनल कैनाल का मकसद ये होता है कि इट ट्रांसमिट्स द स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल्स, इस इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड आगे को आता है, और इन फीमेल्स इट ट्रांसमिट्स द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। तो इसका ताल्लुक बेसिकली हमारे जेनिटो यूरिनरी सिस्टम से है, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मेन कंपोनेंट है स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल्स का और राउंड लिगामेंट यूट्रस फीमेल्स का, उसको इसने ट्रांसमिट करना होता है थ्रू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, वो जो है आगे को आ जाता है। ठीक है, पेरिनियम में। अब हमने इसके ये कैसे याद करने हैं बाउंड्रीज के लिए बेटा याद कर लो, रूफ इज टाइनी, फ्लोर इज लवली, इंटीरियर वॉल इज सुपर एलिगेंट। अनफॉर्चुनेटली फॉर द पोस्टीरियर वॉल आई डू नॉट हैव अ निमोनिक, बट एक्चुअली 3 तो आपके लिए बहुत है ना, काम कर जाएगा। रूफ इज टाइनी, फ्लोर इज लवली, इंटीरियर वॉल इज सुपर एलिगेंट। अब जो रूफ इज टाइनी है ना, तो रूफ में आई और टी से, आई से इंग्वाइनल लिगामेंट एंड आई से इंटरनल ऑब्लिक एंड टी से ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। तो जो रूफ है, रूफ इज फॉर्म बाय द इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल। फ्लोर इज लवली, तो आई से बेटा अगेन हमारे पास जो है फ्लोर जो है इंग्वाइनल लिगामेंट से बनेगा, और साथ में हमारे पास एल से लेकुनर लिगामेंट से बनेगा। तो फ्लोर इज लवली यानी इंग्वाइनल लिगामेंट, फ्लोर इज फॉर्म बाय इंग्वाइनल लिगामेंट एंड लेकुनर लिगामेंट। रूफ इज टाइनी, तो रूफ इज फॉर्म बाय इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल। अब इसमें जो लेकुनर लिगामेंट है ना, यू डोंट नो अबाउट द लेकुनर लिगामेंट, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेकुनर लिगामेंट क्या है। तो फ्लोर इज लवली में इंटरनल 2 लिगामेंट फ्लोर बना रहे हैं, एक इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहे हैं और दूसरा जो है लेकुनर लिगामेंट बन रहा है। तो बेटा लेकुनर लिगामेंट जो है ना, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का जो एपिन्यूरोसिस है वहाँ से ये लिगामेंट उसके एपिन्यूरोसिस से बनता है। एक्सटर्नल ओब्लिक के एपिन्यूरोसिस से जो मसल बनता है वो बैकवर्ड जाता है और लेटरली जाता है, और जाके जो है ना प्यूबिस पे लग जाता है। ये प्यूबिस पे लग जाता है बैकवर्ड और लेटरली जाके, लेकिन निकलता कहाँ से, एक्सटर्नल ओब्लिक से ये लिगामेंट निकलता है। तो हम कहेंगे लेकुनर लिगामेंट इज फॉर्म्ड बाय द एपिन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल व्हिच गोज बैकवर्ड्स एंड लेटरली एंड अटैचेस टू द पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस। ठीक है बेटा, तो ये हो गई फ्लोर इज लवली। फिर उसके बाद है एंटीरियर वॉल इज सुपर एलिगेंट। तो एंटीरियर वॉल कैसे बन रही है, हमारे पास आई से इंटरनल ऑब्लिक से बन रही है, और एलिगेंट में ई से एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपिन्यूरोसिस से बन रही है। और एस में जो 2 चीज़ें याद रखनी, एक स्किन और एक सुपरफिशियल फेशिया। तो एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल के एपिन्यूरोसिस से। अच्छा, देन कम्स द पार्ट वेयर यू शुड नो अबाउट द पोस्टीरियर वॉल। तो मैंने कहा पोस्टीरियर वॉल के लिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई निमोनिक नहीं है, लेकिन आपको मैं याद करा देती हूँ कि जो पोस्टीरियर वॉल है वो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, आपने इस तरह याद रखना है कि सबसे पोस्टीरियरली, मैंने आपको बताया था सबसे पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस पड़ा हुआ है। तो जो सबसे पोस्टीरियर फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है उससे पोस्टीरियर वॉल बनेगी, साथ में उस फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के साथ जो भी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के बाद पेरिटोनियम शुरू हो जाती है। तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और एक्स्ट्रा पेरिनेटोनियल जो टिश्यू होगा वो पोस्टीरियर वॉल बना रहे होंगे, साथ में एक लिगामेंट आएगा, दैट लिगामेंट इज नोन एज द कॉन्जॉइंट टेंडन। तो कॉन्जॉइंट टेंडन जो है ना वो मीडियल 2/3 बनाता है इंग्वाइनल लिगामेंट के, इंग्वाइनल कैनाल के। कॉन्जॉइंट टेंडन है क्या बेटा, इट इज़ अ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू formed by lower part epineurosis of internal oblique and transversus abdominis joining the muscles to the pelvis। means कि जो इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस है उनके एपिन्यूरोसिस से ये शीथ बनती है, और ये शीथ कहलाती है कॉन्जॉइंट टेंडन, और ये बनी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यूज से शीथ।
कौन से मसल्स कंट्रीब्यूट करते हैं बनाने के लिए? इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। इनका मकसद क्या होता है कि ये टेंडन जो है ये इन्हीं दो मसल्स को कनेक्ट कर देता है टू द पेल्विस, इसी के थ्रू ये दो मसल जो है पेल्विस में लगते हैं।